Beautiful good afternoon to all of you. Supriya Kabra ma'am, AGM CB, and Mr. Praveen Dwivedi, President Awoke India Foundation, and my wonderful and amazing audience that comprises of professors, principals, staff members, and students of various colleges of Sitapur in this webinar today on good habits of intelligent investor. Now I request our principal sir to please welcome and introduce the speakers of the day. Principal sir. Hello everyone. Welcome to the Investor Aware webinar for the good investors. As we all know, as investors or prospective investors, we have so many questions in our mind: how to invest, where to invest, and when to invest, so that our money is safe, profit making, and secure for our future. Government also want us to invest in equity markets and security markets. We can see this from our tax structure. As you know, under ATC, investment up to 1.5 lakh is only tax free. After that, if you want to invest, you have to invest in securities, which is not tax free. So on this issue, we have two eminent sons, and they have worked on in this field for a long time. Mrs. Supriya Kabra, AGM SEBI, I welcome her, and Mr. Praveen Dwivedi, President Awoke India Foundation, I welcome sir. Give you some introduction about Mrs. Supriya Kabra. She is AGM of SEBI, Security and Exchange Board. She hails from Kanpur and completed her post-graduation from Mumbai. She had a brief stint of 2 years in the banking and she joined SEBI in 2011 and had a 9 years experience in securities market. She is currently posted in Lucknow office of SEBI since last 2 years. Our second speaker is Mr. Praveen Dwivedi. He is president of Awoke India Group, and he has been an eminent banker. Over 30 years of experience in banking and financial service industries. He has worked in Mumbai, Calcutta, Delhi, Lucknow, and Kanpur. He has worked in many MNCs and private banks as senior level employee, and he has hold the post of senior vice president with HSBC Bank based in Calcutta. Mr. Praveen Dwivedi is a PG DBM law graduate and postgraduate in economics. He holds diploma in financial services and CAIIB from Indian Institute of Bankers, CFB from Securities Institute, Sydney, besides other financial industry certifications. He is AIMA Life member since 1997 and currently Senior Vice President, Lucknow Management Association. Mr. Dwivedi's views on financial literacy has been aired on All India Radio and Doordarshan also. His venture, Awoke India Group, a financial literacy training and consultancy outfit, for 2012. I expect all the participants will get benefits from these two speakers' views on securities, investment, and banking. I welcome you all again, and
I want the speakers to speak on the topic of today. Thank you. Thank you, sir. Now, before we proceed, as the principal sir has already given some introduction about the topic, I would like to say a few words. I would like to just start this topic with a quote from a powerful investor, Warren Buffett, who says, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will have to work until you die." This quotation tells you about the importance of investing and the investor. We all are investors, and those students who are right just now, they will be earning sometimes in future. So we all ought to know what is investment and how and where are we going to invest. जब हम मनी अर्न करते हैं, we don't keep the money in our houses. We invest either in physical assets, that can be property or gold, or we invest in digital assets. Since we are speaking on this platform of SEBI, we will be talking about digital assets like stock, debentures, bonds, shares, and etc. Now, secondly, जो invest करते हैं, वो हम ये सोच के invest करते हैं कि that money is going to meet our financial goals, but whether we are able to achieve those financial goals successfully or not, that is where the habits come into play. According to me, as has been rightly said, chain of habits are too light to be felt, but they are too heavy to be broken. Habits of investor, according to me, comprise of discipline, patience, and consistency. Now, without wasting any time, I just request our first speaker, Ms. Supriya Kabra, to please start with a presentation just now. Over to you, ma'am. Good afternoon, everyone. Am I audible clearly? Am I audible? Yeah, you are audible, Supriya ji. I can hear you. I think others can also. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, Dr. Anupama ma'am, Dr. Ravindra sir, and I welcome all the students and faculty of DDU PG College for the webinar today, hosted by our Investor Association Awok India Foundation. My name is Supriya, and I am AGM working with SEBI since the last 9 years now. And I'll be taking you today through a small presentation which will tell you about what is exactly the role of SEBI in the Indian financial market. And we'll talk briefly upon the do's and don'ts of investing. जैसे कि सर और मैम ने बोला कि in today's market, you cannot, in today's scenario, in fact, you cannot just keep your money lying idle at home. आप घर पे नहीं रख सकते. Inflation है, आगे के, you have, everyone has goals in their life that they have to meet. Different various hurdles are there which you have to have available, and you have to be financially strong to, meet all those future expectation and expenses in your life. तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, वो जानना बहुत जरूरी है. साथ ही साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हम ऐसा क्या करें और क्या ना करें कि हमारा इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे. आफ्टर ऑल we all earn we all work very hard to earn, right? People spend if you invest in a security or if you invest in a product, ऐसी कई जगह पे आपने invest कर दिया किसी company में या किसी ऐसे product में which is like pro fraud, so your hard-earned money can just be gone overnight. तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट ये जानना जरूरी है. साथ ही साथ इक्वली इम्पोर्टेंट है, इफ नॉट लेस, ये जानना कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए. तो आई जस्ट स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन टुडे. इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन, प्लीज बेयर विद मी.
I would request all of you, अगर आपके पास कोई भी questions हो, so you keep on putting that in the chat box. We will try to address it at the end. I can understand it cannot be an interactive session because if every one of you speaks, I'll not be able to continue with my presentation. So आपके पास कोई भी question किसी point of time में किसी slide को लेके है, just put it in the chat box. We'll address it at the end. Give me a minute, I'll share the PPT. Okay. Regulator. सेबी क्या है, सेबी क्या करता है, सेबी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उससे जानने से पहले हम ये समझेंगे कि सेबी एग्जैक्टली है क्या. सेबी इज अ रेगुलेटर. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ अ रेगुलेटर? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक रेफरी है या अंपायर है या रेफरी, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, और अ फुटबॉल मैच फील्ड which is mediating between two teams that are playing the game. Now, एक रेगुलेटर का काम एग्जैक्टली यही होता है कि मार्केट में जितने इंटरमीडियरीज हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, इंक्लूडिंग द इन्वेस्टर्स, किसी भी मार्केट में उनको रेगुलेट करना, ये इंश्योर करना कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं. एंड उस तरीके आई रिक्वेस्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सेंड some annotation request. Please don't do it. The PPT gets like stopped in between. If you want, I'll share the PPT at the end, but please don't send a request right now. Okay. तो एक रेगुलेटर का काम होता है ये इंश्योर करना कि सारे इंटरमीडियरीज मार्केट में फेयर वैल्यू के साथ फंक्शन कर रहे हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हो मार्केट में, एंड किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा हो, स्पेशली द इन्वेस्टर दैट इज देयर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, there are majorly 4 regulators present over here. We have mentioned 5 over here. I'll explain you. SEBI, which looks after the securities market in India. Then there's RBI, which regulates all the banking companies and the NBFCs. Then there's IRDA, which regulates all the insurance companies. And there's PFRDA, which regulates all the pension fund companies. And then there was the Forward Market Commission, which was looking after all the commodity derivative segment. But now FMC is merged in SEBI. So SEBI के purview में securities market as well as commodity derivatives आता है. So this is a broad framework within which the financial industry of the country runs. So if you are dealing with a bank, you know that it comes under the purview of RBI. So अगर बैंक से related कोई issue आता है, so you will approach the bank, and if not solved, then you will approach the RBI. Similarly, SEBI के अंडर में जितनी listed companies या mutual funds या securities market से related कोई भी intermediary आता है, you approach them for your problems, and if they do not resolve your issue, then you come to us. I'll talk about the complaint redressal mechanism in later slides. Now, just to give you a brief background, SEBI, Securities and Exchange Board of India, was formed as an administrative body under the Ministry of Finance way back in 1988. And then in the year 1992, by the Act of Parliament, we were accorded statutory status. So SEBI is an autonomous independent body working under the aegis of Ministry of Finance. Now, the various acts which are administered are these. This is just a list of the acts that are at the base of our functioning. But there are various regulations, बहुत सारे rules हैं, बहुत सारे circulars हैं which keep on coming from time to time, which govern the functioning of all the intermediaries and then take care of the rights of the investors in the market. Now, under our purview, हम बोलते हैं 3 I's fall under our purview, which are investor, issuer, intermediary. Very like self-explanatory, but I'll just give you a structure how it operates. Investors कौन होते हैं? Like by the name of it, people like you and me. It could be retail investors, मतलब जैसे
retail investor हुआ, and it could be a institutional investor also. So anyone and everyone, whether be it an individual or a company that invests in the market, that puts its money in the market, is called an investor. Issuer कौन हुआ? ये जो पैसा लेते हैं वो issuer हो गए. The companies which are raising money from the public are called issuers. And then there is a third category of intermediaries, जो कि issuers और investors के बीच में जितने भी transactions हो रहे हैं उनको facilitate करने के लिए जो bodies, जो entities, जो companies market में function करती हैं, that fall under the category of intermediaries. Now, all these intermediaries have to be compulsorily registered with SEBI. कोई भी इंटरमीडियरी मार्केट में बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के फंक्शन नहीं कर सकता है. तो इफ यू आर डीलिंग विद अ ब्रोकर, अगर आप किसी ब्रोकर के साथ डील कर रहे हैं या किसी इन्वेस्टर एसोसिएशन या इन्वेस्टर एडवाइजर के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि वेदर दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी और नॉट. उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, उनके कंप्लायंस ऑफिसर्स की डिटेल, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सेबी वेबसाइट. तो आप वहां जाके उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर की या कोई भी एजेंट जो इंटरमीडिएट है जो सिक्योरिटीज मार्केट में डील कर रहा है. 1 minute. Okay. We'll come to why investment. Okay. थोड़ा सा just if you can focus away from the PPT right now, I'll want to tell you all, आप सबको पता है कि money will not grow sitting idle. ठीक है, अगर आपने अपने घर में कुछ कैश रखा हुआ है over a period of time, या अगर सिंपली आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कोई पैसा, कोई अमाउंट रखते हैं and you don't further invest that money somewhere, so it is very likely that the money will not grow. In fact, it will deteriorate in its value, क्योंकि आपका जो inflation rate है मार्केट में, it will keep on increasing. The cost of living increases and everything becomes expensive as we grow, as economy of a country improves. So obviously आप अगर पैसा ऐसी जगह पे रख रहे हैं which is like totally idle, तो आपका पैसा grow नहीं करेगा. So this slide talk about the importance of investing your money. It could be anywhere, like as per your risk appetite. आपका रिस्क लेने का जितना capability है, उसके हिसाब से आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. It could be a FD, it could be a post office scheme, any scheme of the post office. Then अगर आपको एक्चुअली में इन्फ्लेशन बीट करना है, एक डिसेंट रिटर्न चाहिए, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड म्यूचुअल फंड्स. Then there comes a more riskier investment product, that is directly investing in the stock market. But again, understand, जैसे जैसे आप you're moving up the ladder of risk, जैसे जैसे आप रिस्क ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, उसी तरीके से आपका रिटर्न भी बढ़ता है. बट दैट डजंट मीन कि रिटर्न को चेज करने के लिए आप हाई रिस्क लें, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी रिस्की प्रोडक्ट में आपको उसको समझना बहुत जरूरी है. आपके पास उतना टाइम होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से असेस कर पाएं और उसके बारे में अच्छे से समझ पाएं, जान पाएं, और तभी उसमें इन्वेस्ट करें. So now if you take look at this table, you will come to know that if you accumulate a corpus of say 10 lakh rupees, मतलब अगर आपका टारगेट है 10 लाख रुपए जमा करने का, तो आपको it gives you an idea कि आपको roughly every month कितना जमा करना होगा for a particular number of years. Now if you just be with me, the first column says 5 years, then it is 10 years, 15, 20 and so on. Similarly, on the left hand side, you can find the rate of interest 6, 8, 10, 12, 15. Now how to read this table? Now suppose आपके पास 5 साल का टाइम है. ये हम कैसे समझते हैं, आपकी मतलब you work till the age of 60. Okay, 60 साल by the age you are 60 आप रिटायरमेंट लेते हैं. तो अगर किसी ने सपोज अपने करना चाहिए, अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट आफ्टर रिटायर मोर इम्पोर्टेंट कि रिटायरमेंट के लिए
स्पेसिफाइड सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे, उसके लिए आपको आज इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो सपोज समवन वेक्स अप एट द एज ऑफ 55 कि भाई अभी तक तो मैंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, अब मैं सोचता हूँ कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 10 लाख रुपए तो जोड़ लूँ अगले 5 साल में बिफोर माई रिटायरमेंट। So for 5 years, and if I invest in a, say a bank FD भी 6% नहीं देती है आज तक, तो एक कुछ भी ले लेते हैं, इन केस एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम ले लेते हैं, NSE या KVP में भी 6%। तो अगर 6% के लिए 6% रेट ऑफ रिटर्न पे आप 5 years के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको मंथली 14,321 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, so that आपके पास 5 साल बाद 10 लाख रुपए हो जाए। But again, this 6% will not beat your rate of inflation, so आपका this corpus of 10 lakhs will be of very less value after 5 years also. Now you move up the ladder, अगर suppose आपके पास 10 साल बचते हैं, मतलब आप 50 साल की एज में सोचते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए at the same rate 6%, so you get a amount, मतलब you have to invest 6,000। तो आप यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं, 5 साल जब बचे थे तो आपको 14,000 कुछ इन्वेस्ट करना था मंथली, और अगर आपने अपना यही टाइम थोड़ा बढ़ा दिया है, 10 साल बचे हैं, मतलब 50 years के हैं आज, तो आपको सिर्फ 6,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना है। सिमिलरली इफ यू गो टू द एंड ऑफ द टेबल दैट सेज 30 years, मतलब आज के टाइम पे आप सिर्फ 30 साल के हैं और रिमेनिंग 30 साल का टाइम है आपके पास 10 लाख रुपए जोड़ने के लिए, तो आपको महीने का सिर्फ 1,000 रुपए इकट्ठा करना है एट 6%, दैट इज द बेयर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 6%। 1,000 रुपए महीने का आप जमा करेंगे तो आपका 10 लाख रुपए का बन जाएगा। सिमिलरली इफ यू गो डाउन ओवर हियर, तो 15% विच इज 15% के नीचे के ऊपर वाला ले रहे थे 12% विच इज एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न वन गेट्स इफ यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम, गुड म्यूचुअल फंड स्कीम। तो 12% तक का अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है और आप 30 साल की उम्र से शुरू कर देते हैं, तो रिमेनिंग आपके पास कितना सैलरीड इनकम मतलब इनकम ईयर्स बच रहे हैं, दैट इज 30 years। तो आपको 12% पे 324 रुपए सिर्फ महीने का जमा करना है, सो दैट आपको 30 साल बाद 10 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाए। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग अर्ली एंड इट ऑल्सो शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो कोई पूछता है कि मुझे कब इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट अभी हाई है, लो है, अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या अभी यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या मतलब कब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँ। तो आई ऑलवेज टेल पीपल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। It's always to start investing, it's better to start investing early than late। आपके पास ऑप्शंस आज के टाइम पे इतने ज़्यादा हैं ऑनलाइन, and as well as those people who are not comfortable investing online, so you can do it physically also। इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं आज के टाइम पे, आप 500 रुपीज मंथली से स्टार्ट कर सकते हैं, बेयर मिनिमम 500 रुपए। तो अगर कोई अब आप लोग PG स्टूडेंट्स हैं, कल को आप स्टार्ट योर करियर, यू विल गो इनटू कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट जॉब्स एंड यू स्टार्ट अर्निंग मनी से 20, 25, 30, 35,000 पर मंथ, तो 500 रुपए महीने का निकाल के एक SIP कर देना इज वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपका इंटेंट नहीं होता है उस टाइम पे सेव करने का। योर इंटेंट इज दैट, मतलब हर किसी का होता है इनफैक्ट, आपका ये रहता है कि यू आर अर्निंग, सो नाउ आई शुड लीड अ गुड लाइफ, आई शुड स्पेंड, बट एटलीस्ट 500 रुपीज पर मंथ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड everyone should be doing it. I'll go on to the next slide, which says, now see, this is we call it the mathematical ninth wonder of the world, the rule of 72। now simple है, 72 को अगर आप divide करेंगे the rate of return that you are getting in any scheme, that will show the number of years that is required to double your money को मिलता है किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में। तो 72/9 इज 8 years, मतलब 8 साल लगेंगे आपका पैसा डबल होने में अगर आप 9% के रेट वाला कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस शोज, हेलो म्यूट मिस्टर दिनेश कुमार यादव, थैंक यू। तो रूल ऑफ 72 says 72 by the rate of interest
tell you the number of years which is required to double your money. तो आप ये बैक कैलकुलेट किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे कर सकते हैं, then you exactly know कि how much time आपका लग रहा है वो पैसा डबल हो. 10,000 रुपए आज लगाया सपोज at 9%, again I'll take the same example. तो 72 by 9 मतलब 8 साल में वो 10,000 का 20,000 हो जाएगा. As simple as that. Now this equation can be used to gauge when people are bluffing. आप सपोज कोई एजेंट है या कोई ऐसा पर्सन आपके पास आता है who says कि आप मुझे 10,000 रुपीज आज दीजिए, मैं ना 2 साल में आपका पैसा डबल करके दे दूंगा. अगर वो ऐसा कुछ बोलता है तो आप इस इक्वेशन को एक उल्टे तरीके से भी यूज कर सकते हैं. 72 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इयर्स विल गिव यू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अगर कोई 2 साल में बोल रहा है आपका पैसा डबल करने का, तो 72 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 36. तो 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट उस इंस्ट्रूमेंट पे आपको प्रॉमिस किया जा रहा है. जो भी आपके पास मतलब पर्सन अगर इस टाइप की कोई स्कीम लेकर आता है, यू कैन क्वेश्चन कि बहुत ऐसी कौन सी स्कीम है जो मेरा पैसा 36% रेट के हिसाब से पैसा मेरा डबल कर देगी 2 साल में. तो मोर और लेस दीस पीपल आर लाइक fraudulently trying to take your money and just मतलब आपका प्रिंसिपल लॉस तो होगा ही होगा, और उनके झांसे में आके हो सकता है आप अपना सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ सेविंग इन्वेस्ट कर दे. So you can always keep this equation in your mind and do your financial calculation. Now, I'll discuss some of the do's and don'ts while investing in general. It's not only about securities market. ये सब जगह आपको ध्यान रखने की चीज है. First is documentation is the key. Now it's very important. ये एक ऐसी चीज है जो हम बहुत लाइटली लेते हैं. सबको पता होता है, उसके बाद भी हम लाइटली लेते हैं. सपोज आप किसी बैंक में जाते हैं और आपको एक सिंपल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है, या कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीदना, कोई पोस्ट ऑफिस में जाना है, आपको एक सिंपल अकाउंट ओपन करना है. यूजुअली होता क्या है, लोग बता देते हैं आपको, मैडम यहाँ साइन कर दीजिए, बाकी ठीक है हम फिर कर लेंगे, विच इज वेरी रॉन्ग. अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट फिल करना है रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट, मेक श्योर यू आर रीडिंग द डॉक्यूमेंट, मेक श्योर यू आर फिलिंग एवरी डिटेल ऑन योर ओन. जो आपके लिए एप्लीकेबल है उसको भरिए, जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उसको क्रॉस करिए, और सोच समझ के साइन करिए जगह पे. बिकॉज यूजुअली होता क्या है ऐसी जगहों पे, मतलब ऐसे फॉर्म्स में जैसे छोटे छोटे टेक्स्ट में कॉलम्स होते हैं, यू वांट अ क्रेडिट कार्ड, या आपको कोई लोन चाहिए, या पता चला कोई बंडल प्रोडक्ट हो, उसमें इंश्योरेंस अटैच कर दिया 2 लाख रुपए का, 5 लाख का. तो फिर जब वो अमाउंट डिडक्ट होने लगता है ना आपके अकाउंट से, तब आपको समझ में नहीं आता है कि ये अमाउंट कैसे डिडक्ट हो रहा है. मैंने तो कुछ बोला नहीं था बैंक को करने के लिए, या किसी भी एजेंट को करने के लिए. देन यू कम टू नो कि सर आप ही ने तो फॉर्म भरा था, आपने साइन किया था, क्योंकि आपने क्रॉस नहीं किया जो चीजें एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, तो ऑब्वियसली इट इज कंसिडर्ड योर कंसेंट. तो प्लीज अवॉइड दैट. इन्वेस्टमेंट इज नॉट गैम्बलिंग. बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए. स्टार्ट स्मॉल एंड कीप अ ट्रैक. जैसे मैंने बताया 500 रुपए की SIP मंथली, छोटी से छोटे अमाउंट की कोई एक अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको मार्केट का, म्यूचुअल फंड तक की मतलब जो सबसे इजी इन्वेस्टमेंट टूल होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक स्मॉल अमाउंट की RD कर सकते हैं. वंस यू एक्यूमुलेट दैट अमाउंट, देन यू कैन इन्वेस्ट इट समवेयर इन अ स्कीम और समथिंग. तो स्टार्ट स्मॉल. ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से अपना 1 मंथ की सेविंग इन्वेस्ट करनी है, या आपको एकदम से कोई किसी ने बोल दिया कि इतने लाख रुपए लगा दीजिए, एक प्रॉपर्टी खरीद लीजिए या एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदिए. डोंट डू दैट. छोटे से अमाउंट से शुरू करिए. कीप अ ट्रैक ऑफ दैट. जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा इन्वेस्टिंग का, खुद करना सीखेंगे, देन यू कैन डिसाइड टू ऐड मोर मनी. नाउ स्टे डाइवर्सिफाइड, वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो. व्हेन आई से स्टे डाइवर्सिफाइड, जब मैं बोलती हूँ कि म्यूचुअल फंड, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% सेविंग अपना म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए. आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देखिए, अपने लाइफ गोल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह इन्वेस्ट करिए, एंड मेंटेन अ वेल बैलेंस पोर्टफोलियो. कुछ पार्ट आपका लिक्विड इनकम में होना चाहिए, मतलब जब आपको कभी कुछ इमरजेंसी हो तो आप तुरंत वो पैसा निकाल पाए. मतलब आपको 5 मिनट में सपोज कुछ अमाउंट चाहिए, तो ऐसा नहीं है आपने पूरा अपना सेविंग अकाउंट ही खाली कर दिया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता है सेविंग में. एंड इन केस यू वांट दैट मनी फॉर सम इमरजेंसी या कुछ हॉस्पिटलाइजेशन नीड्स, so you should have that also.
the more you trade, the more broker earns. Now this is only relevant for people who are trading stocks में. तो ब्रोकर का कमीशन बंधा होता है आपके नंबर ऑफ ट्रेड से, ना कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस से. तो जितनी बार ब्रोकर आपको फोन कर करके बोलते हैं ना, सर ये खरीद लो, अच्छा चल रहा है, सर ये बेच दो, अभी ये डाउन होने वाला है, या इस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक हो गया, सर ये हटा दो. तो जितने ट्रेड कराता है, नंबर ऑफ ट्रेड, उतने हिसाब से ब्रोकर कमीशन लेता है. तो यू शुड बी कॉशियस ऑफ दैट. उसमें आप 100 टिप्स मिल रही हैं आपको, तो यू डोंट हैव टू एक्ट ऑन ईच एंड एवरी टिप. डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो मार्केट टिप्स और रूमर्स. बहुत सारे आजकल मतलब सोशल मीडिया का जमाना है एंड अनसॉलिसिटेड एडवाइस बहुत मिलती है. एवरीवन इज एक्सपर्ट. लोग मतलब हाँ मुझे पता है, सबको पता होता है कि कब मार्केट ऊपर जाने वाला है और कब नीचे आने वाला है. ओनली एक्सपर्ट्स को नहीं पता होता है. So do not, fall prey to the words of such people. ऐसे WhatsApp फॉरवर्ड अगर आपको दिखते हैं या कहीं कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट या कोई न्यूज, इवन मीडिया न्यूज चैनल्स पर अगर आपको ऐसे कोई टिप, सॉलिड टिप, गारंटीड रिटर्न, इस टाइप के वर्ड्स दिखते हैं, तो प्लीज ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर रहिए. And last is not there. There's the next slide also. Do not invest with borrowed money. वेरी इंपॉर्टेंट. अपने पैसे से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू इट. बट अगर आप बोरो करके मतलब किसी से लेकर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने नाम पे, एंड इफ यू सफर लॉस, अगर बाय एनी चांस दैट इन्वेस्टमेंट डज नॉट टर्न आउट टू बी गुड, then you owe to that person. That's a wrong thing to do. Never do that. You have to make your money work hard in order to grow. आप बिल्कुल blindly नहीं बैठ सकते हैं ये सोच के कि ओके मेरा एजेंट है वो संभालता है मेरा काम, या मतलब someone in your family looks after your investment needs. See, it's good to rely on people. It's good to rely on experts. अगर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेके, या आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी और की हेल्प लेके जिसको जो जानकार है आप अपना पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट यू हैव टू बी विजिलेंट योरसेल्फ. मतलब आप उनके साथ साथ आपको भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग टू योर मनी. सो यू आल्सो हैव टू वर्क सम टुवर्ड्स दैट, अचीव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. डील ओनली विद रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट, जो मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में बोला था. अगर आप सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी इंटरमीडियरी के साथ, किसी भी ब्रोकर के साथ डील करते हैं, प्लीज चेक द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन सेबी वेबसाइट. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई इंटरमीडियरी मार्केट में ऑपरेट नहीं कर सकता. इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट्स दैट आर रेगुलेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन स्टार्टिंग की स्लाइड्स में जो मैंने 4 रेगुलेटर्स के नाम बताए थे, उन चारों रेगुलेटर्स के अंडर में वो कंपनी फॉल करनी चाहिए जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, बिकॉज अगर इन केस चीज में फ्रॉड होता है, you will not be able to seek help from anyone. Invest as per your objective. Now this is again very important. Person A can choose to invest in a particular product. Person B may not want that product. सिंपल सी चीज है. अगर आपको अपनी लाइफ में 4 गोल्स हैं, सपोज कुछ अचीव करने हैं, जो आपके नेबर्स हैं या इवन आपके फैमिली में कोई दूसरा पर्सन है, may not be having the same goals, right? तो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा पर्सन अपने गोल्स के अकॉर्डिंग करता है. तो कभी भी दूसरे की देखा देखी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए. Even after taking all these precautions, even a seasoned and advanced investor can be subjected to fraud. Because problem क्या होती है fraud में? There is always a lack of knowledge, and there's always a lack of knowing the rules and regulations of any market. This we have said about securities market, but of any market. So SEBI has a grievance redressal mechanism in case something goes wrong with your investment, or you face some kind of a service issue from your intermediary, या म्यूचुअल फंड में आपसे कुछ रिडम्पशन को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, यूनिट अलॉटमेंट को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज कंसर्निंग एनी इंटरमीडियरी ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट और अ लिस्टेड कंपनी, यू कैन अप्रोच दैट द कंपनी. आप उनसे अप्रोच करिए, अपनी कंप्लेंट रेज करिए. इफ दे कम आउट विद अ सोल्यूशन टू इट, वेल एंड गुड.
If they don't come out with a solution to it, then you have the second step. You can approach the investor service cell of a stock exchange. Again, if you're satisfied with the resolution that is provided by the investor service cell, well and good. If you're not satisfied, then comes our complaint redressal system, which is called SCORES. Now, scores.gov.in, this is the homepage of the website. This looks about. And on the left hand side, you can see there's an investor corner which gives you an option to register yourself. एक इन्वेस्टर अपने लाइफ टाइम में एक बार अपना रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर ले, जस्ट लाइक अ जीमेल अकाउंट. You create a registration over here, and then you can lodge complaints against any intermediary or a listed company. You can raise the issue. Your complaint directly goes to one SEBI officer according to the jurisdiction, and then after complaint is taken up with the concerned company or the intermediary, and appropriate resolution is provided to you. Now, स्कोर्स की वेबसाइट के अलावा स्कोर्स का एक ऐप भी है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. आप जाके वहाँ पे सेबी स्कोर्स टाइप करेंगे, यू विल गेट दिस ऐप. यू कैन डाउनलोड इट. अगेन द सेम प्रोसीजर. You can register yourself or sign in if you are already registered on the website, and you can lodge your complaint, keep track of complaint. Like physical complaints में क्या होता है, आपने पेपर पे कुछ कंप्लेंट लिख के दे दी किसी ऑफिस में पहुंच के, देन वो ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फिजिकल कंप्लेंट को आप मतलब डिजिटली क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है. फिजिकल कंप्लेंट्स में वो चीज़ नहीं हो पाती है. So it's always good to use app or secure the website to lodge your complaints and keep track of it. Different categories are also assigned. तो आप particular क्या आपको issue मतलब exactly क्या issue आ रहा है आप वो mention कर सकते हैं. So this is very important. Keep this in mind, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ अगर होती है तो you should know whom to approach. Okay, this is the end of my presentation. We have 4 regional offices: Delhi, Kolkata, Ahmedabad, and Chennai. Our head office is in Mumbai, as everyone of you knows, and we have local offices in the state capitals. So Lucknow being one of them. We handle the entire state of UP. There's an investor website which is very useful, particularly for students. अगर आपको कुछ भी reading material चाहिए with respect to the securities market, ये investor.sebi.gov.in पे जरूर login करिए. Sorry, there's no required to login. Just check out, just browse the investor website. These are the toll-free numbers, and in case of any query or request for future webinars like this, you can always approach us. There's the email ID of the Lucknow office, lucknow-lo@sebi.gov.in, and these are the numbers on which you can reach any of the officer of Lucknow office. And I thank you all very much to patiently listening to me. Thank you. Thank you very much, Supriya ji, for presenting such a comprehensive and elaborate knowledge to all the participants who have joined. I, on behalf of Evoke India Foundation, welcome all of you, and Dr. Anupma, Dr. Ravindra Kumar, Principal, DDU PG College, and all the other faculty members, teachers, PG students, and other members or participants who have joined. एक बार मैं सभी का दोबारा से पुनः इस कार्यक्रम में, आज की इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं. और जहां तक कि मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बातें बता दी गई हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर रविंद्र कुमार जी ने कहा था, जो एक वेतनभोगी की जो सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि कैसे मेरा टैक्स बचे, नंबर 1. नंबर 2 होता है कि कैसे मेरा पैसा और बढ़े. ये 2 चीज़ें अगर हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो मुझे लगता है कि सारा सार जो है उसी में छिपा होता है. तो मैं कोशिश करूंगा कुछ की इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता सकूं. हालांकि साथ ही बहुत सारी और चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि एक अच्छे निवेशक की तरह आपको फॉलो करनी चाहिए अपने नियमित जीवन में. जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, चाहे पैसे को बचाने का हो, चाहे पैसे को निवेश करने का हो, तो उस निर्णय में थोड़ा समय लगा करके आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए.
तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको 10 से 12 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन है, वो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को सामने मैं प्रेजेंट करूंगा, और उसके साथ ही ज़्यादा समय हम रखेंगे कि आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकें अपने। चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और इन केस अगर कोई रेज हैंड करता है, चाहता है डायरेक्टली भी पूछना, तो ऑफ कोर्स वी कैन अलाउ दैट, वो भी हम लोग कर सकते हैं। मैं 1 मिनट ले रहा हूँ टू शेयर द कंटेंट विद ऑल ऑफ यू माय प्रेजेंटेशन। So, is it visible to everybody? And am I audible? I have not checked that. Yes, it's visible. Okay, fine. So, just a brief about Evoke India Foundation. आप जितने भी लोग आज करीब 70 के प्लस लोग ज्वाइन किए हुए हैं इस वेबिनार को, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर अनुपमा तो अच्छी तरह जानती हैं, आप हमारे लखनऊ ऑफिस भी आ चुकी हैं, मेंबर भी हैं हमारी एवोक इंडिया फाउंडेशन की आप। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को जोड़ा अपने बाकी वहाँ के सीतापुर के और कॉलेज के फैकल्टी से। तो एवोक इंडिया फाउंडेशन 2012 में ये स्थापित हुई, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो वित्तीय रूप से कैसे आपको और जानकारी दी जाए, ये मुख्य उद्देश्य है। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि आपके हितों की रक्षा हो सके। उसके लिए हमें सेबी ने इन्वेस्टर एसोसिएशन का हमें रिकॉग्निशन दिया हुआ है। हम लोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और मुख्य रूप से हम फाइनेंस के विषय में ट्रेनिंग, एजुकेशन और जागरूकता पे कार्यक्रम करते हैं। पिछले लगभग 3 सालों में हमने 300 से ऊपर कार्यक्रम किए हैं, और लगभग 15,000 से ऊपर लोगों को कवर किया है, पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी 75। उसके अलावा हम लोगों ने सीतापुर में भी हमारा 2 बार जाना हुआ, और अभी तो कोविड की वजह से हम लोग मोस्टली वेबिनार कर रहे हैं, लेकिन अवश्य जब कभी समय मिलेगा या पोस्ट कोविड हम जरूर चाहेंगे कि आप लोगों से आपके सामने रूबरू हों और आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में बताएं। ये हमारा एडवाइजरी बोर्ड है जो हमें गाइड करता है, हमारे जो भी सामाजिक कार्य हैं और जो हमारे वित्तीय जागरूकता के कार्य हैं। प्रोफेसर सुब्रतो चक्रवर्ती हमारे एक्स डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ IIM लखनऊ, ही इज अवर चेयरमैन। उसके अलावा जस्टिस SC वर्मा, श्री DP पटनायक साहब रिटायर्ड IAS, श्री विजय शाही साहब, मिसेस अपर्णा अवस्थी फॉर्मर DGM SBI, प्रोफेसर विपुल जो अभी करेंटली फाइनेंस के प्रोफेसर हैं IIM लखनऊ में, वो हमारे बोर्ड में हैं, श्री AK सिंह साहब CGM नाबार्ड, एक्स CGM नाबार्ड एक्चुअली, और अभी रिटायर हो गए हैं वो, डॉक्टर दीप्ति द्विवेदी और श्री प्रमिल द्विवेदी। सो दिस इज आवर बोर्ड विच आई थॉट आई वुड गेट टू नो। सो नाउ क्यों हम लोग करते हैं ये प्रोग्राम, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। एक तो ये जरूरी है कि हम किसी भी स्टेज में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, इवन हम लोग भी फाइनेंस के हैं, हम एक्चुअली कॉन्टिन्यूस हम लोग स्टूडेंट भी हैं। जब भी कभी मुझे प्रेजेंटेशन करना होता है, मैं दोबारा से एक बार अपना दिमाग और किताबें खोलता हूँ, फिर प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज करता हूँ, कुछ चीज़ें नई डालता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो लोग जिनसे हम जुड़ने जा रहे हैं उनके लिए हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि उनको कुछ फायदा हो सके। वरना आज के समय में बहुत सारे प्रेजेंटेशन और वेबिनार हो रहे हैं और हमें लगता है कि जस्ट हम एक संख्या बढ़ाने के लिए है, तो ऐसा हम कोशिश करते हैं अपनी पूरी कि आपको हम उसकी कुछ जानकारी दे सकें। तो कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन आप किसी भी फील्ड में है तो होनी चाहिए, चाहे आप टीचर हो या आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन फाइनेंस के मामले में तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से तेजी से बदलाव हो रहे हैं आज, खास तौर से ब्याज की दरें जिस तरह से गिर रही हैं, मैं खाली उसी बात को अभी आपको बताना चाहूँगा कि आप सब लोग थोड़ा पैसा बचत खाते में रखते होंगे, बैंक FD में रखते होंगे। जिस तरह से ब्याज की दरें गिर रही हैं, अगर आप बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी कॉन्टिन्यूअस नहीं रखते हैं तो आप बहुत ही, मुझे लगता है कि जो भविष्य है वो बहुत ही अंधकार में होने वाला है। तो आपके जो भी निर्णय हो, फाइनेंशियल डिसीजंस, वो उसी जानकारी के तहत अगर होंगे तो शायद वो आपके लिए लाभकारी होंगे। एक थोड़ा मैं एक सर्वे जो अभी हुआ इकोनॉमिक टाइम्स का, उसकी बात बताना चाहूँगा आपको। 22 से 36 साल के लोगों के बीच एक सर्वे हुआ, जिनको की बोलते हैं Gen X बोलते हैं जिनको। ये कहा गया है कि वो हमारे देश के सबसे बड़े स्पेंडर्स हैं, मतलब स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा वही लोग करते हैं जो 22 से 36 वाले हैं। 36 के बाद तो ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आदमी थोड़ा स्पेंडिंग कम हो जाती है।
अब सोचिए अगर ये 22 से 36 साल वाले लोगों को अगर नॉलेज नहीं है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की, तो वो शायद गलतियां कर बैठेंगे। तो उनके लिए बहुत ही, मुझे लगता है काफी लोग आपसे जो हमसे जुड़े हैं आज इस उम्र के हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रेलिवेंट है ये। एक और सर्वे हुआ है, टाटा कैपिटल सर्वे, टाटा का। उस सर्वे में पाया गया है कि जो 18 से 25 साल के लोग हैं, उनको बोलते हैं जेन जेड बोलते हैं, जेन जी कहते हैं उसको। उसमें ये कहा गया है कि 34% लोग बैंक में पैसा रखते हैं, 19% म्यूचुअल फंड में, 17% इंश्योरेंस में, 17% गोल्ड और रियल एस्टेट में, 8% इक्विटी शेयर्स में और 6% कंपनी बॉन्ड्स में। तो अब मैं थोड़ा आप लोगों से एक थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, 60-70 लोग जुड़े हुए हैं, और एक आप लोग अपने चैट बॉक्स में अगर डाल सकें तो जरूर डालिए कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, ए में किया है, बी में किया है, सी में किया है, डी या ए बी सी में किया है, या बी डी में किया है, या ई एफ में किया है। तो चैट बॉक्स में खाली आप ये ऑप्शन लिख दीजिए कि आपने बैंक्स में किया है तो ए लिख दीजिए। धीरेन्द्र कुमार, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी ने ए लिखा है। किसी और आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने, शिवांगी जी ने आ लिखा है, वेरी गुड। मुझे भी अच्छा लगता है आ ई पढ़ने में और काका काका पढ़ने में अच्छा लगा मुझे, आपने आ लिखा। कृष्ण कुमार जी ने ए और डी लिखा है। मुझे थोड़ा इससे हम लोगों को एक आइडिया लगेगा जिन लोगों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं वो लोग किस जगह ज्यादा निवेश करते हैं। प्रियांशी जी ने ए लिखा है, ज्यादातर लोग ए लिख रहे हैं, नीलू ने भी ए लिखा है, और अभिषेक कुमार ए और डी। सो आई थिंक डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग अगर लिखना चाहते हैं रियल एस्टेट, तो ऑफकोर्स सबका होगा ही। काफी लोगों का आ रहा है, मुझे लगता है बहुत लोग ज्यादातर ए में लिख रहे हैं। एनीवेज, आप लोग इसको आंसर देते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। उससे लग रहा है कि आप लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं इसको हम। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ज्यादातर लोग बैंकिंग में निवेश करते हैं, और बैंक में मैंने भी चूंकि 23 साल बैंकों में ही काम किया है, मुझे अच्छा लगता है कि बैंक्स में लोग, और मेरा जो इसकी स्थापना करने का कारण वही था कि बैंक से बाहर भी दुनिया बहुत है, तो थोड़ा सा हमको उस तरफ भी बढ़ना चाहिए, और उसी के लिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। तो अच्छा लगा, काफी लोगों ने इसका आंसर दिया। मैं थोड़ा आगे भी कुछ ऐसे सवाल पूछता रहूंगा। आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे खुशी होगी अगर आप सब लोग थोड़े से जवाब देते रहेंगे। तो उससे जो एक स्पीकर जो स्क्रीन को देख रहा होता है और थोड़ा बोर हो रहा होता है, थोड़ा सा उसका भी उत्साह बढ़ जाता है और उसको अच्छा लगता है। तो अब मैं 2-3 चीजों की बात आपसे करूंगा। एक तो बात है कि आर्थिक आजादी की, कैसे आपको ऐसा हो जाए कि आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आप आर्थिक रूप से आजाद हो जाएं, कि आप पैसे के लिए काम ना करना पड़े, वो कैसे करेंगे। नंबर 2, हम बात करेंगे आपसे रिस्क के बारे में, कि आपको अगर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो होता है वो क्या करता है कि वो रिस्क को मैनेज करता है। रिस्क तो बहुत हर जगह है रिस्क। और नंबर 3, हम बात करेंगे आपसे कि क्या हैबिट्स आपकी और होनी चाहिए, और कुछ अगर टैक्स के बारे में बात कर सकते हैं तो वो भी हम बता सकते हैं आपको। तो फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक आजादी या वित्तीय स्वतंत्रता मान लीजिए इसको आप। अभी भी हम लोग अगस्त के महीने में हैं, तो इसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक ऐसी यात्रा है, जिस यात्रा में जिस पड़ाव पे आप रुके, उस पड़ाव पे ऐसा हो जाए जहां पर आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। अगर आपको कविता लिखनी है तो कविता करने का मन करता है तो कविताएं करिए आप, और पैसा इतना हो कि भाई अच्छे से हमारा दाल रोटी चल जाए, एक गाड़ी हो, एक घर हो, अपना आराम से पैसा हर महीने आता रहे। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, उसको बोलते हैं आर्थिक आजादी, जब आदमी पा लेता है। और वो हर एक के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए होता है 50 करोड़ में आर्थिक आजादी होगी, किसी के लिए 5 करोड़ में, किसी के लिए 50 लाख में, किसी के लिए 5 ही लाख में हो सकती है। तो वो अलग अलग चीज होती है कि जिस चीज को एंजॉय करते हैं वो आप कर सकें। और ये अब नए जो युवा वर्ग आ रहा है उसमें बहुत चीजें हो रही हैं। बड़े शहरों में एक कॉन्सेप्ट भी आ गया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और रिटायर अर्ली चाहते हैं वो लोग, 35 साल में रिटायर हो जाएं। तो अब मैं अगला सवाल आप लोगों से पूछने वाला हूं, आप लोग थोड़ा तैयार रहिएगा कि आप किस उम्र में आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं। 35, 40, आप खाली नंबर लिख दीजिएगा वहां, 45, 48, 58, 60। आप लोगों से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, किस उम्र में आप चाहते हैं कि आप, अभी आपको सुप्रिया जी ने बहुत सारी चीजें बताई इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कैसे आप 500,000 रुपए इन्वेस्ट करके, तो राखी जी ने बोला 50, वेरी गुड। 45, किसने, कृष्णा, आप दुर्गेश जी लिख रहे हैं 40, वेरी गुड। सो काफी लोग, अच्छी बात है कि मतलब जल्दी रिटायरमेंट की बात काफी लोग कर रहे हैं। 27 तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। दर्शित ने लिखा है, तो और कोई काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं इसमें। राजन वाजपेयी 35 लिख रहे हैं, 40,
ओके, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी ने 50 लिखा है, अन्नपूर्णा जी ने 40, ओके, अभिषेक 50। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई 60 तक जाना नहीं चाहता है। 60 के पहले सब लोग अपनी एटलीस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई काम ना करें। आप काम ऑफकोर्स करें, लेकिन काम उस पैसे के लिए ना करना पड़े कि मजबूरी में हम परेशान होकर रहे हैं। अगर ये है तो दैट इज अगेन, नेहा जी ने 50 लिखा हुआ है, तो काफी लोग 50 40 लिख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छी सोच है। और अब उस सोच से अगर हम अपने जो इस विषय को जोड़ेंगे तो शायद आप लोग, तो आपको जो आपने पहला लिखा था कि ऑप्शन ए, और यहाँ अगर आप लिख रहे हैं 40, तो ये दोनों चीजें बहुत भिन्न है। ये आपको फिर एकदम डाइवर्जेंट हैं, ये आपको वहां तक नहीं ले जाएंगी जो 55 साल में पूजा मौर्य जी ने लिखा है कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो अगर पहले ऑप्शन में आपने ए लिखा था तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, और वहीं पर ये जो गैप है उसको हम लोग आज की नॉलेज से फिल करना है कि आप कैसे थोड़ा सा, देखिए रिस्क हर जगह होता है। आज पैंडेमिक है, आज हम भी अपना मास्क लेकर के रखे रहते हैं, जैसे ही निकलेंगे केबिन से बाहर तो मास्क तुरंत पहनना है। तो जैसे कि हम लोग इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं, तो प्रिवेंशन और इम्यूनिटी दो चीजें हैं जो हमारे रिस्क को कम करेंगी, खत्म नहीं करेंगी, खत्म तो कभी नहीं करेंगे। वैसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी आपको रिस्क को कैसे कम करें ये जानना चाहिए, और वो चीज हमें अगर आ गई समझ में तो मुझे लगता है आप सब लोग बहुत जल्दी करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। लेकिन वो ही सबसे डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि आसान होती तो हर आदमी 100-200 करोड़ रुपए बना सकता था, लेकिन आपको वो थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। हम लोग साथ में हैं, बाकी आपको हमेशा कुछ भी पूछना है तो ना। रिस्क क्या है, हर जगह है, हर स्टेज पे है। रिस्क से लोगों के बड़े बड़े सपने अगर प्लान नहीं किया है तो वो खत्म हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, जो मुंबई में कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो अंबानी जी का वो हॉस्पिटल किसी और का सपना था। एक डॉक्टर, मुझे इनका नाम मिस हो रहा है अभी, मराठी डॉक्टर थे, हाँ जी, तो उनका सपना था, उन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, ये लोन वोन लिया, काफी लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई एट अ वेरी अर्ली एज, 45-50 के बीच में ही। एंड फिर उनकी वाइफ फाइनली उसको नहीं कर पाई आगे, और वो जगह उन्होंने बाई कर लिया अंबानीज ने, और नाउ इट इज डॉक्टर कोकिलाबेन हॉस्पिटल, मिसेस कोकिलाबेन हॉस्पिटल। तो मेरा कहने का ये है कि अगर आपने रिस्क को प्लान नहीं किया है तो आपके सपने किसी और के हो सकते हैं, आपका छोटी शुरुआत की हुई चीज भी किसी और की जा सकती है। तो आपको अपनी इस यात्रा में रिस्क का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिसको आपको करना पड़ेगा, चाहे वो आप बैंक में रखें पैसा, चाहे आप म्यूचुअल फंड में रखें। म्यूचुअल फंड में मैं आके बताऊंगा आपको कहाँ पर थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करें आप, चाहे छोटा सा बिजनेस कर रहे हो या आपका जॉब हो, बहुत जरूरी है कि प्लानिंग करें, प्रोजेक्शन करें। कोई भी आदमी फोरकास्ट नहीं कर पाएगा कि पैंडेमिक कब होगा अगला, या अभी जो चल रहा है खत्म कब होगा। लेकिन अगर हमने पहले से थोड़ा इस तरह की कॉन्टिजेंसी के लिए प्लान किया था तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। अभी हम लोग एक कॉलेज की टीचर्स के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें लखनऊ की एक बड़ा कॉलेज है, तो उनके मैनेजमेंट ने वही बोला कि भाई हमारे यहाँ टीचरों ने थोड़ा इमरजेंसी पैसा रखा था, उनको नॉलेज थी, तो आज उनकी सैलरी थोड़ी कम भी हुई है, तो वो जो प्राइवेट कॉलेज है वो, तो वहां पर वो मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम लोग इन चीजों को प्लान करें। अब क्या होता है कि प्लानिंग क्यों नहीं हो पाती है? पहली बात तो एक शब्द अभी आया है भूखा। भूखा का मतलब वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी होता है। मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अनिश्चितता तो है हर समय पर, हर कदम पर। नंबर 2, हम लोगों के अंदर वित्तीय रूप से साक्षरता हम मानते हैं हम भी परफेक्ट नहीं है, और बाकी भी किसी भी आप ओहदे पे हो, वित्तीय साक्षरता हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है, तो वो हमें नहीं होती है। तीसरा नंबर है कि हम लोग ज्यादातर पैसे को लेकर के, उसको मैनेज करने को लेकर उदासीन होते हैं। हम लोग पैसा कैसे और आए वो तो चाहते हैं, लेकिन कैसे उसको मैनेज करें उस पर हम समय नहीं देते हैं। और हम लोग बहुत जल्दी इमोशनल होकर के ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पर भी। सुप्रिया जी ने बहुत चीजें बताई आपको कि मतलब कैसे आप किसी के भी कहने पे, एडवाइजर कहने पे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ना कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट करें। और हम लोग ज्यादातर बहुत रश करते हैं, तुरंत साइन कर देते हैं फॉर्म में,
कोई आदमी 4 बार आया, उसने बोला एक डब्बा मिठाई लेके आया, तो बोला ठीक है भाई, लड़का बगल का है, पड़ोस का, अच्छा ही बोल रहा होगा, अब पढ़ना लिखना क्या है, चलो साइन करो, दे दो इसको। तो ये जो हमारी अवस्था है पैसे को लेकर के, वो थोड़ी सी गलत है, और तभी हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं, चाहे किसी प्राइवेट में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, किसी में भी जाएं आप, क्योंकि हर आदमी को अपना हित दिखता है और वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब खास तौर से जो इस समय चल रहा है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, पे कट हो रहे हैं, लोगों को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, हर तरह की बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो इसमें आपको और इसकी थोड़ी सी प्लानिंग और टाइम मिल रहा है। आज आप लोग वेबिनार में जुड़े हुए हैं, तो ये आप जरूरी है कि इस चीज को आप थोड़ा और ध्यान दें और इस पे काम करें। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो कोविड है, ये तो कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी प्लेग हुआ, कॉलरा हुआ, स्पेनिश फ्लू हुआ, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, इतनी सारी लाइफ गई, ठीक है। इस तरह की हेल्थ की बहुत सारे आपदाएं आई इस तरह की, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी बहुत सारे इस तरह की आपदाएं आई हैं, और लेकिन बहुत समय पहले आई हैं। इस सेंचुरी में कहा जाए तो ये 2021वीं में तो पहली बार ही हो रहा है ये कोविड-19 इस तरह का। और तो हमें ये देखना है कि अगर हमारी लाइफ टाइम में ऐसा कुछ आया है तो हमें ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए, अपने साथ भी और अपने फैमिली के को भी सिखाना चाहिए कि कैसे इस तरह की सिचुएशन में हम अपने को तैयार रखें। हम लोग बात करते हैं थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग की। जो हम लोगों ने एक सर्वे किया उसमें देखते हैं कि ज्यादातर लोग 25 से 35 साल तक तो कभी बनाते ही नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग करते ही नहीं है। हम लोग, हमारे यहाँ पर एक फाइनेंशियल डायरी, इसको हम लोग बोलते हैं माई फाइनेंस डायरी, MFD बोलते हैं। मुझे लगता है शायद डॉक्टर अनुपमा जी को मिली होगी, नहीं होगी तो हम लोग भेज देंगे एक कॉपी। तो जब कभी भी आप यहाँ आएंगे, अभी सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर हम लोग लिंक में डाल देंगे, सॉफ्ट कॉपी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है जरूर मेंटेन करनी चाहिए माई फाइनेंस डायरी। तो और 35 के बाद लोग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं लिखना पढ़ना कि भाई चलो ठीक है, हम ये मेरे गोल हैं, उद्देश्य हैं, करना चाहिए। और लेकिन 50 तक आते आते 45-50 तक वो देखते हैं। मैं अभी कल ही किसी को मिल रहा था, किसी हमारे एक मिलने वाले आए थे, बोल रहे थे कि भाई हमारे तो प्रवीण जी साहब यहाँ वहाँ सब फैला हुआ है और रिटायर हो गए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे उसको इकट्ठा करें हम। कभी कोई ले गया इंश्योरेंस, कोई ले गया म्यूचुअल फंड, कोई ले गया, कभी बैंक गए तो बैंक वाले ने करवा दिया, कभी कोई घर में रिश्तेदार है उसने करवा दिया। तो ये जो स्थिति होती है बहुत कंफ्यूजन वाली होती है, वो नहीं होनी चाहिए। आपको सारी चीजें कंसोलिडेट करके सिंप्लीफाई करनी चाहिए, और ऑफ कोर्स आप मदद लीजिए एक्सपर्ट की, गाइड की, लेकिन खुद की नॉलेज बहुत जरूरी है आपको, सो दैट आप आगे से किसी प्रॉब्लम में ना फंसें। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी है। मैं आपसे कहूँगा कि आपस में, परिवार में इन बातों को जरूर साझा करिए, क्योंकि बैंकों में और बीमा में इस समय करीब 35,000 करोड़ रुपया ऐसा पड़ा हुआ है जिसका कि कोई लेनदार नहीं है। मतलब बैंक को नहीं पता किसका पैसा है, वो पैसा पड़ा है अनक्लेम्ड अकाउंट में, और उसका कारण सिर्फ यही है कि परिवार में लोग आपस में बात ही नहीं करते। हम लोगों ने पुलिस के लिए प्रोग्राम करे और सभी जिलों में किए उत्तर प्रदेश के, तो देखा कि मतलब ज्यादातर लोगों से हमने कहा हाथ उठाइए कितने लोग परिवार से बात करते हैं। वो बोलते हैं साहब बात क्या, हम परिवार में मिल ही नहीं पाते हैं तो बात क्या करेंगे, 24 घंटे की नौकरी है हमारी, दिन रात तो काम ही करते हैं, तो वैसे ही बात नहीं हो पाती तो पैसे की बात क्या होगी। अब आप सोचिए, उनकी पोस्टिंग अलग अलग होती है, सरकारी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग अलग अलग होती है, हर जगह आदमी कहीं अकाउंट खोल देता है और फैमिली को पता नहीं होता। कोई अगर ईश्वर न करे दुर्घटना हो जाती है तो परिवार को पता ही नहीं होता है कितने अकाउंट थे, कितने इन्वेस्टमेंट थे, ये सारी चीजें होती थी। कोमल भारती इज रेजिंग ए हैंड, आप क्वेश्चन लिख दीजिए अपना, हम लोग बाद में उसको टेकअप करेंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, परिवार से बात करना। बहुत से लोग बोलते हैं पैसा ही नहीं हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, टाइम ही नहीं है, तो ये भी एक सिंपली हैबिट की बात है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से, कितने लोग ऐसे हैं जो लिखते हैं कहीं पर अपने पैसे का हिसाब डेली या मंथली या वीकली? यस या नो में आंसर दीजिएगा अपने चैट बॉक्स में मुझे, जो लोग लिखते हैं। चलिए कुछ लोग लिख रहे हैं यस। मुझे लगता है जो लोग नो वाले हैं वो नहीं लिखते हैं ज्यादातर, ये भी एक गलती है। नो वाले को भी लिखना चाहिए, कम से कम आज के दिन आप नो लिख करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए।
नो को भी एक्नॉलेज करिए, कन्फेस करिए, एडमिट करिए कि हाँ ठीक है मैं नहीं लिखता हूँ, अगर ये चीज अच्छी है लिखनी चाहिए तो मुझे आज से शुरू करना चाहिए लिखना कि मेरी इनकम कितनी है, मेरा महीने का बजट कितना है, मेरी सेविंग्स कितनी है, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है। आप जब कभी माई फाइनेंस डायरी, अभी मैं आपको इसमें हमारे जो रजत हैं और सृष्टि है इसमें ऐड कर देंगे, तो आप ले सकते हैं सॉफ्ट कॉपी भी, लेकिन आप हार्ड कॉपी यूज करिए, लेकिन लिखिए जरूर। आपको ये फाइनेंस डायरी अभी लिंक डाल दिया गया है इसमें, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने सिस्टम में भी सेव कर लीजिएगा, जो मोबाइल पे है मोबाइल पे सेव कर लें, तो कम से कम एक आइडिया लग जाएगा आपको। लेकिन समहाउ मेरा लगता है कि कहीं ना कहीं जरूर आपको आज की दिन में डिजिटल युग है, डिजिटल में ही करना चाहिए, लेकिन हाथ से भी लिखें तो बहुत अच्छा है। दैट इज वेरी गुड, बिकॉज थोड़ा सा उससे हमारा जो रियलाइजेशन है, जो हमारे सेंसेस हैं, वो थोड़े से और मतलब अलर्ट हो जाते हैं इन चीजों को लेकर के, जब हम लिखते भी हैं और देखते भी हैं, सुनते भी। तो फाइनेंस डायरी आप जरूर बनाइए, जरूर लिखिए, बिकॉज दैट इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल प्लानिंग। अब सेविंग्स के बारे में सब बता दिया गया आपको अभी, क्या चीजें जरूरी हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कुछ गुड हैबिट्स के बारे में, बहुत सिंपली, बहुत छोटे से, उसमें अगर हम ज़्यादा चाहेंगे समय आपको मिले क्वेश्चंस के लिए, और मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ आपसे अभी। इमरजेंसी फंड आपको रखना चाहिए 3 से 6 महीने की आपकी सैलरी का। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, तो आप समझिए कम से कम आप 1.5 लाख रुपया आपका इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। 1 से 1.5 लाख रुपया होना चाहिए कहीं पर, जो कि रखा रहे, लिक्विड फंड में हो या एफडी में हो, कहीं पर भी हो, जो आपको तुरंत मिल जाए। एटीएम से क्या निकाल लिया, जरूर नहीं सेविंग्स में हो, लिक्विड फंड में भी मिल जाता है, जहां रिटर्न आपको 4 से 5-6% मिलता है, वो भी कर सकते हैं आप। आपका जो प्लान हो उसको लिख करके भूल मत जाइए कि एक बार लिखा उसके बाद 2 साल 3 साल भूल गए, उसको भी आप रिव्यू करते रहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिव्यू कर, जो भी पैसा आपने रखा है उसको आप जब डायरी हमारी ये देखेंगे, खोलेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आपको पैसा एक जगह नहीं रखना है। बहुत से लोगों ने लिखा था कि हम खाली बैंक में रखते हैं, बैंक में खाली नहीं रखना चाहिए आपको जरूर पैसे को 4 से 5 जगहों पर, 6 जगहों पर रखना चाहिए। उसमें दिखना चाहिए कि कौन से ऐसी जगह है जहां मेरा पैसा थोड़ा तेजी से बढ़ेगा। हाँ, उसमें मुझे समय ज्यादा देना पड़ेगा, शायद 10 साल 15 साल, लेकिन वहां पर रिटर्न मुझे उम्मीद है आने की कि 12% 15% मिल जाता है। तो अगर वो हो सकता है तो मैं वहां पैसा भी रखूंगा। कोई इन्वेस्टमेंट मेरा अगर काम नहीं कर रहा है तो उससे मैं बाहर निकल आऊं, बजाय इसके कि उसको हम रख के बोले कि अब रोते रहे, अरे क्या हो गया, फंस गया, मेरा 100 रुपया लगा था, 100 का 70 रह गया है, अब पड़ा रहने दो इसको। अरे भाई 70 मिल रहा है, 70 निकाल लो आप। अगर पता है कि वो खराब हो चुका है, बेकार हो चुका है, किसी बैंक के शेयर लिया, यस बैंक का शेयर लिया, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको रिव्यू करने के बाद जहां पे लग रहा है लॉस है उसको निकाल लीजिए, बजाय बशर्ते इसके कि उसको जीरो हो जाने दें जस्ट बिकॉज हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो गए। ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के अपने गोल लिखिए उस कॉपी में जहां लिख रहे हैं आप, और उससे अपने इन्वेस्टमेंट को लिंक कर दीजिए। ये मेरा पैसा शॉर्ट टर्म के लिए है, 6 महीने के बाद मुझे ये किस्त देनी है बीमा की, उसके लिए हो गया। 3 साल बाद बिटिया को पढ़ाने भेजना है, मान लीजिए कहीं बाहर, तो उसके लिए 3 साल का हो गया। 5 साल 20 साल की रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट का हो गया। तो ये शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जरूर करिए। ज्यादातर लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग सब लोग 3-6 महीने से ऊपर जाते ही नहीं है। तो बड़े बिजनेसमैन है, आप कोई भी देखेंगे, इवन सरकार जो होती है वो हमेशा प्लानिंग 20 साल 30 साल की करती है। उनके पास लिखा होगा आज भी कि वो अगले 10 सालों में क्या करने वाले। लेकिन ज्यादातर हम लोग जो होते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, क्या करना है, कौन दिखाया 5 साल में। हम लोग जब कॉर्पोरेट में काम करते थे बोलते थे आप लिखिए कि 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। अगर आप नहीं लिख पाए तो आप घर जाइए, आप जॉब करने लायक नहीं है। तो जो व्यक्ति ये नहीं करता है तो वो बिल्कुल भी प्लान नहीं है। प्लानिंग जरूरी है आपको अपने गोल के विषय में, फाइनेंशियल भी और पर्सनल प्लानिंग भी करिए आप। पेशेंस जरूर रखिए, डिजिटल आप जाइए, ऑनलाइन जाइए, आज समय भी बचेगा आपका और आपको बेहतर उससे रिटर्न भी मिलेगी। कंपाउंडिंग और एवरेजिंग के बारे में बता दिया गया है आपको। ये 2 ऐसे टूल्स हैं जिनका कि आपको यूज करना ही चाहिए। ये दोनों SIP के माध्यम से बहुत अच्छी इसमें आपको दोनों का लाभ मिलता है, वो आप जाइए उसमें। टैक्स को बचाने के बहुत से तरीके हैं जिसको कि आपको प्लान करना चाहिए। वो टैक्स प्लानिंग का सेशन हम लोग अलग से करते हैं, कि कभी अगर समय मिला तो हम लोग आपको केवल टैक्स के बारे में बताएंगे, जो कि थोड़ा सा लंबा सेशन होता है वो। और आपकी रिटर्न जो है, जहां पर भी पैसा लगा है कहीं अगर आप लिख लेंगे उसको, तो ये देखिए कि आपको अगर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर, थोड़ा सा आप लोग जरूर अखबार पढ़िए। अखबार में हर हफ्ते आता है
कि महंगाई की दर इस हफ्ते कितनी रही। जैसे अभी महंगाई की दर जो रिटेल इन्फ्लेशन जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं जिसको, वो थोड़ा बढ़ गया है, अभी 5 से 6% के बीच पहुंच गया है, जबकि होलसेल इन्फ्लेशन बहुत नीचे है, 0 के आसपास है, लेकिन रिटेल बढ़ गया है। तो एवरेज अगर आप देखोगे 10 साल का एवरेज, तो इन्फ्लेशन करीब 6 से 6.5% रहा है। तो अगर आपको 6% भी नहीं मिल रहा है पोस्ट टैक्स, मान लीजिए एफडी में आपका रिटर्न 5.25% हो गया, अब 5.25% माइनस अगर आप 30% ब्रैकेट में आ रहे हैं, 20 में आ रहे हैं, वो कर दिया हमने, तो हमारा कितना बन गया? 3.5-4%। तो अगर हम 3.5, हमको 100 रुपए में 3.5 मिला या 4 मिला एक साल में, और 6% महंगाई बढ़ गई, तो एक्चुअली हम लोग -2 हो गए। तो अगर हम ये नहीं सोच पाएंगे तो हमारा पैसा, कैपिटल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये ध्यान रखना है। अब मैं 1-2 सवाल और आप लोगों से पूछ लेता हूं, जिससे कि थोड़ा सा आप लोग और एक्टिव हो जाएं। कितने लोगों के पास डीमैट अकाउंट है? अगर है तो लिखिए 3Y, और नहीं है तो लिखिए 3N, डीमैट अकाउंट। क्योंकि अभी ये डीमैट अकाउंट बहुत सारे खुले हैं। लक्ष्मी नारायण जी ने लिखा है भाई, ठीक है, ये मैं अभी सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, जबकि अभी इसके भी हैं, बहुत अच्छी बात है। नो कुछ लोग लिख रहे हैं, नो, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। अगर नो भी है तो आप समझिए जरूर उसको। मेरा कोई इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि सबके पास बैंक अकाउंट होते हैं। आज डीमैट अकाउंट के बारे में लोग जानते भी नहीं है, डीमैट अकाउंट होता क्या है एक्चुअली, वो बताना चाहूंगा मैं आपको। राजेंद्र जी बोल रहे हैं नो, मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने भी बोला है नो, साक्षी मिश्रा जी नो, अमिशा नो, 3N, सब लोग 3N ही लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं 3Y। तो अच्छी बात है। ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मैं जिसका भाई है उसका नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छी बात है, आपके अकाउंट है, आप बाकी लोगों को भी बताइए इसके बाद लाभ के बारे में। लाभ भी है, नुकसान भी है, लेकिन अगर आप, जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर रिस्क मैनेज करना जानते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ते हैं, तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन विदाउट नॉलेज नो। तो जिन्होंने नो लिखा है, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 90% लोगों ने नो लिखा है। डीमैट अकाउंट वो होता है जो आपको कभी भी शेयर्स खरीदने के लिए किसी कंपनी के खोलना होता है, और सिक्योरिटीज की मार्केट के तहत सेबी का उस पर पूरा कंट्रोल होता है। तो वो आप डीमैट अकाउंट किसी भी बैंक के माध्यम से खोल सकते हैं, या कोई और अगर डिपॉजिटरीज है उनके माध्यम से भी खोल सकते हैं आप। तो आप वो जरूर खोलें, मैं कहूँगा, और एक जरूर प्रयास करें कि आप 1 शेयर 2 शेयर किसी भी कंपनी का, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उत्पाद, उसके बारे में पढ़िए। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको इसके बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए कि कैसे ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कैसे आपके ओवरऑल रिटर्न में ग्रोथ कर सकती हैं। ये टैक्स के मामले में भी बहुत अच्छा है, टैक्स भी आपको इसमें टैक्स फ्री है अगर आप 1 लाख से कम इनकम होती है इसमें आपकी शेयर्स में, और साल की। तो इस तरह के निवेशों से आप अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 4था सवाल पूछूंगा, कितने लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है? तो 4Y और 4N लिखेंगे आप लोग। काफी लोग बोल रहे हैं नो लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोविड टाइम में भी ये नहीं है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है जो आप सबको अपने से पूछना चाहिए। अपनी डायरी में लिखिए इसको। प्रोटेक्शन पहली चीज है, अगर जो लोग भी आप लोग लिखते रहिए। मुझे लगता है, मुझे अगर नहीं भी यहाँ लिख रहे हैं तो अपने, आपके पास कोई डायरी है, पेन है, वहां लिख लीजिए। काफी लोग मैं देख रहा हूँ एन लिख रहे हैं, तो जो कि एक बहुत ही मुझे लगता है सीरियस चीज है, सबकी होना ही चाहिए ये। तो ये मैं बताता हूँ क्यों होना चाहिए। मैं अभी थोड़ा सा आपको मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बताऊंगा, उसको बताता हूँ। तो कितने लोगों के पास 5वां सवाल है, सिप है, SIP है, कंपाउंडिंग और एवरेजिंग का कौन लोग फायदा ले रहे हैं? तो 5Y या 5N लिखिएगा आप लोग। जानना चाहता हूँ कितने लोगों की जानकारी ऑलरेडी है, ताकि थोड़ा सा उस पर मैं आपको स्ट्रेस कर सकूं। इसमें कई लोगों के Y आंसर आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। N भी आ रहे हैं, तो N भी ठीक है, मुझे लगता है। देखिए, Y और N जो लिख रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि आज जो नो लिख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो नो बड़ा बड़ा लिखें, और फिर SIP के 5 फायदे लिखें अपनी कॉपी में, और उसके बाद थोड़ा उस पर अध्ययन करें, थोड़ा सा अलग अलग वेबसाइट्स पे जाएं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। सेबी के वेबसाइट पे जाएं, एमफी के वेबसाइट पे जाएं, जो एसोसिएशन, और
कुछ आपको और जानकारियां चाहिए तो हमारे माध्यम से ले सकते हैं आप लोग, ताकि आपको इन चीजों, इस सत्र के बाद, आज के सत्र के बाद कुछ इससे आपको अगले 1 साल में आप जो भी अपना प्लानिंग करें उससे आपको कुछ फायदा हो सके। ये हमारा उद्देश्य है। पूजा जी ने लिखा है बस यस, और काफी लोग ने लिखा नो और यस, इसमें काफी यस भी आए हैं, जो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। अब जो लोग थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ चीजें रिपीट भी होंगी इसमें, बट मैं तब भी एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। जो लोग इंटेलिजेंट रहते हैं इन्वेस्टिंग में, वो लोग पहली बात तो खर्च करने से पहले सेव करते हैं। सैलरी जैसे ही आई इमीडिएटली SIP चल रही है या कुछ और का इन्वेस्टमेंट पैसा निकल गया पहले, फिर उन्होंने खर्चा स्टार्ट किया। अभिषेक कुमार जी को रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर रहा हूं मैं, ये एनोटेशन की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। सो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए हमको। हम लोग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इमोशन में कर जाते हैं। कल ही 2 दिन पहले किसी का फोन आया था कि प्रॉपर्टी में उन्होंने गुड़गांव में एक निवेश कर दिया, 22 लाख रुपए दे दिए, अब बिल्डर कह रहा है पैसा और दीजिए, इनके पास पैसा नहीं है। मैंने बोला भाई आप बोल दीजिए कि उसको मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। बोलते अरे हमें लेना तो है घर। अरे हमने कहा भाई लेना है तो प्रॉपर्टी के दाम तो गिर रहे हैं, फिर आप क्यों, गुड़गांव में पानी भरा हुआ है, क्यों आप अभी से उसको कहते हैं ऐसा ना हो हमारा पैसा खा जाए, ये हो जाए। तो इमोशंस जहां आ जाते हैं, और प्रॉपर्टी में तो खासतौर से इमोशंस आ जाते हैं हमारे, वहां पर हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इमोशंस ना लाएं हम। और SIP में यही होता है, इमोशंस गायब हो जाते हैं। मार्केट ऊपर गया नीचे गया कोई मतलब नहीं। अगर 5 तारीख को हर महीने मेरा पैसा 1000 रुपए निकलना है तो निकल रहा है पैसा मेरा, मुझे देखना भी नहीं मार्केट कहाँ जा रहा है, और वहीं पर वो एवरेजिंग होती है, वहीं पर वो कंपाउंडिंग होती है, और आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है लंबी अवधि में। कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही है आपको, नहीं समझ में आती है, तो बिल्कुल हाथ मत लगाइए। चाहे वो कोई भी स्कीम हो, फ्यूचर ऑप्शन हो, प्लांटेशन हो, ये हो, दुनिया की चीजें, MLM, बहुत सारी तो फ्रॉड स्कीमें भी होती हैं जो ऐसे कॉम्प्लेक्स की जाती हैं ताकि आपको लगे कि बहुत अच्छी होगी और बहुत पैसा बनेगा, और क्रिप्टो करेंसी है कुछ है। आप बिल्कुल मत जाइए उस तरफ, कितना भी लालच कोई दे, लालच से आप दूर रहिए। जब हर आदमी एक तरफ भाग रहा हो उधर मत जाइए, हर्ड मेंटेलिटी मत जाइए। बहुत सारे टिप्स आते रहते हैं आजकल, जैसे ही डिमैट अकाउंट खोलेंगे आप तो टिप्स आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सी कंपनियां हैं झारखंड में, सूरत में, जो मैसेज भेजती रहती हैं आपको, ये शेयर लीजिए 2 रुपए का और इसको बनाइए 2000 रुपए बनाइए आप 1 साल में। सब आपको नहीं देखना है, तो ये आपको समझदारी से अपनी ये काम करना है। तो मैं एक सवाल और पूछता हूं, वाई और एन में आंसर दीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में किसी ने पैसा कभी लूज किया हो गलत डिसीजन की वजह से, किसी का लॉस हुआ हो? यस और नो। अगर हुआ है लॉस तो यस लिखिए, नहीं हुआ है तो नो लिखिए। हुआ है, कई लोग का यस आ रहा है, which is quite revealing। किसी ने लिखा है नो, ठीक है, ने लिखा है नो, ओके नो। सो थोड़ा सा इसमें ये भी सवाल आता है, कितने लोग बात करते हैं पैसे के मामले में अपने परिवार में, और बहुत से लोग बताते ही नहीं लॉस होता है। जब गेन होगा तो बताएंगे, लॉस होगा तो बताएंगे भी नहीं। कई लोग का यस, जनार्दन जी का यस आया, कई लोग आ रहा है यस, विच इज परिवार में कहीं ना कहीं। आज हम लोग तो डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ लोग डेली फ्रॉड हो रहे हैं, डेली इस तरह के। एक्चुअली आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि बैंक फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं, सडनली बहुत बढ़ गए हैं। कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ 250% या कितना ग्रोथ हुई है बैंक फ्रॉड। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे इतने प्रयासों के बाद भी आज हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, और ग्रीड में या जल्दबाजी में हम गलतियां करते हैं। सो एनीवेज, काफी लोगों ने इस बारे में आंसर दिया, विच इज वेरी गुड। मैं एक दो चीजें और हैं। रेगुलर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए आपको, जो लोग करते हैं। जो भी फ्रॉड या वैसे मैंने बताई दिया आपको, रेगुलेटर्स हैं। कोई भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल मार्केट, उसको छुपाइए मत। मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं जो सीनियर रिटायरमेंट के बाद बेचारे उसने अरे क्यों पुलिस में जाएं, किससे बताएं, हम कहाँ करेंगे, बवाल में जाएं, चलो पैसा डूब गया, डूब जाने दो। ये हमारी अवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका डूबा है अगर पैसा, तो आपकी, अगर आप थोड़ा सा जाएंगे, रिड्रेसल लेंगे, तो कम से कम बाकी लोग बच सकते हैं। तो जरूर उसको बताइए लोगों से, और जहां पे हेल्प मिल सकती है लीजिए, हमसे बताइए। सेबी का आपको साइट बताएगा, उसको बताइए आप, ये बहुत जरूरी है। और बिल्कुल इस पे उदासीन मत रहिए। एक सवाल मैं और पूछूंगा, इसमें ABCD की आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ABCD
कितने लोग ऐसे हैं जो थोड़ा और जानकारी चाहेंगे बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज या फिर कमोडिटीज के बारे में? तो A B C D E लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग 6A 6B 6C डाल सकते हैं यहाँ पे। हमारे जो कलीग जुड़े हुए हैं रजत और सृष्टि, इसको नोट भी कर लेंगे। और अगर आपको आगे तो आप बैंकिंग के बारे में चाहते हैं अभिषेक पूछना कुछ और, तो इसमें आपको पर्टिकुलरली किसी मान लीजिए म्यूचुअल फंड भी जानना चाहते हैं आप और कुछ, या शेयर सिक्योरिटीज के बारे में, तो डी लिख दीजिए आप कि डी में किसी ने लिखा है 6D, वेरी गुड। सो कमोडिटीज हो गया, या इनके बारे में कमोडिटीज में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, गोल्ड या आता है, कोई बी के बाद लिखा है, म्यूचुअल फंड लिखा है किसी ने। तो इन चीजों के बारे में और जानकारी आप चाहते हैं, ये अच्छी बात है, तो हम उसके विषय में आपको म्यूचुअल फंड या फिर हम कमोडिटीज के बारे में अलग से भी कोई प्रोग्राम ला सकते हैं, आपके लिए एक्सक्लूसिवली कर सकते हैं थोड़ा, जिसमें कि आपको उसका डिटेल बताया जा सकता है। क्योंकि ये आज का कार्यक्रम जनरल है जो काफी चीजों को कवर कर रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ABCD किसे लिखा है, 3 चीजों को लिखा है, अच्छी बात है। तो डॉक्टर राजीव द्विवेदी लिखा है, आई थिंक मैं मिस कर गया, पर ठीक है, वो हमारे पास रहेगा, स्क्रीनशॉट ये रहेगा, तो वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस। सो लास्ट में मैं ये आपको बता दूं कि 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, 5 P's को हम लोग बोलते हैं मनी मैनेजमेंट के। वो है, पहला तो कैसे पैसा आए, प्रोक्योरमेंट, वो आप जानते हो कैसे पैसा आना चाहिए। प्रोटेक्शन उसका वो कैसे होता है, वो आपका मेडिक्लेम होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, और नंबर 2 लाइफ इंश्योरेंस। तो वो चीजें हो गई, तो आपका जो एग्जिस्टिंग पैसा है वो डूबेगा नहीं। कल को भगवान न करे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है मेडिकल, तो ऐसा नहीं हो। अभी एक वकील साहब का एक केस हुआ, उन्होंने बताया, कानपुर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, उस कार्यक्रम में उन्होंने साझा की ये बात, 45 साल की उम्र में उनको बाईपास करानी पड़ी, वो मेदांता भागे रातों रात, उनकी पूरी जीवन की पूंजी समझिए डूब गई सारी। ईश्वर की दया से वो बच गए, लेकिन उनका मिश्रा जी का ये हाल हुआ, मैं बताऊंगा आप लोगों को, कि उन्होंने मुझसे कहा, प्रवीण जी मुझे पता होता कि ये चीज जरूर होती है मेडिक्लेम की, तो मैं शायद पहले करा लेता, तो मेरा पैसा थोड़ा बच जाता। तो प्रोटेक्शन ऑफ योर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग का है कि आप ये 2 चीजें जरूर करिए। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान होता है, टर्म प्लान मस्ट है, होना ही चाहिए। तो पहला प्रोक्योरमेंट, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा प्रिजर्वेशन। ये बता चुका हूं मैं आपको। प्रिजर्वेशन मतलब कि आपके 100 रुपए 100 रहे, 100 से कम ना हो जाए। ऐसा ना हो कि महंगाई आपके पैसे को खाए जा रही हो, आप मालूम पड़ा 3% अर्निंग कर रहे हैं और 5% महंगाई है, तो 2% माइनस चल रहा है आपका साल दर साल, आपको पता ही नहीं है कि कहीं आपने लिखा ही नहीं इस चीज को। तो जब ये चीजें आप देखेंगे, अब उसको आता है प्रोलिफरेशन, ग्रोथ कैसे करें इस पैसे की। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मैं सिप में लगाऊं, डेट फंड में लगाऊं, FD में, इक्विटी में, स्टॉक्स में, गोल्ड में, बैंक डिपॉजिट्स, मनी मार्केट, कहाँ लगाऊं मैं, वो थोड़ी जानकारी करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा ग्रो करे। और लास्ट P होता है पासिंग ऑन। आपकी वेल्थ कैसे अगली जनरेशन में चली जाए, वो भी इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा ना हो कि आपने पैसे तो बहुत कमा लिए, प्रॉपर्टी बहुत कर ली, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और मालूम पड़ा वो प्रॉपर्टी झगड़े की जड़ बन गई, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी वसीयत हो, मेरा कुछ ऐसा लिखा हो आगे के लिए, वो नहीं किया। तो वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, उसको हम लोग बताते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और माई फाइनेंस डायरी को मैं दोबारा बार बार बता रहा हूं कि ये एक डिसिप्लिन है, जिसके बिना आप अगर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे तो किसी भी रिस्क को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो आपको करना ही करना है। ये कुछ चीजें आपको ये बताई जा चुकी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि आपकी कोई भी एज हो, आप एक प्लान जरूर बनाइए। आपको सॉफ्ट कॉपी दे दी गई है, कुछ पूछना हो तो आप फोन कर लीजिएगा। इसमें आपको लास्ट में अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर भी रहेगा, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप लोग सब लोग जुड़े भी हुए हैं व्हाट्सएप से, तो उसमें भी आपके पास नंबर्स हैं, तो वो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, जो आप लोग जो वेबसाइट के माध्यम से जुड़े होंगे, उसमें हमारा न्यूज़लेटर के लिए भी आप अपना मेल आईडी डाल सकते हैं, तो न्यूज़लेटर आपको मिलता रहेगा, हिंदी में है। जो लास्ट न्यूज़लेटर है वो भी आप अभी आपको हम लोग लिंक यहाँ पे डाल देते हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। लर्निंग करने के बाद उसका एप्लीकेशन जरूर करिए। आप जो भी आपने आज सीखा होगा,
चाहे वो इन्फ्लेशन के बारे में, चाहे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, थोड़ा उसको अप्लाई करिए और तभी आप कुछ आगे सीख पाएंगे। जब आपके 5 रुपए 100 रुपए कहीं लगेंगे तब आपका इंटरेस्ट आएगा, वरना तो सब चीजें एकेडमिक हैं, ज्ञान सारा किताबों में है, उसका कोई लाभ नहीं है जब तक कि उसको अप्लाई न किया जाए। शॉर्टकट नहीं करना है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, ये सारे शब्द जो है डिक्शनरी में हैं। आज जो दुनिया के जो सबसे वेल्दी लोग हैं वो इन चीजों को फॉलो करते हैं। अगर टॉप 10 रिचेस्ट लोग देखेंगे आप, वो इन चीजों को फॉलो करते हैं, तभी वो आज वहां पहुंचे हैं। तो पैसे को बढ़ाना और ग्रो करना इजी नहीं है, क्योंकि ये जो क्वालिटीज हैं वो आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी। और जो आपको आज फार्मूला बताया गया है उसको अगर आप कर लेंगे तो मुझे लगता है काफी लोग उसमें सफलता पा सकते हैं। हम लोग एवोक इंडिया की तरफ से आपको क्या हेल्प कर सकते हैं? तो मैंने जैसे कहा कि कोई भी ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन जो होते हैं वो एकेडमिकली, प्रैक्टिकल भी करना है आपको तो वो भी करा सकते हैं हम लोग। जो हम लोग के लाइव प्रोजेक्ट चलते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, उसमें वॉलंटियरिंग कर सकते हैं आप लोग। आपकी रेगुलर लर्निंग के लिए हमारे पास ऑनलाइन भी हम कुछ आपको क्लासेस हैं, प्लस हम लोग कुछ अदरवाइज भी हमारे ऑफिस में यहाँ पर भी ट्रेनिंग रूम्स हैं, वो भी करते हैं हम लोग। कंप्लेंट कोई भी आपकी है तो आप बिना बेहिचक जरूर आप किसी भी सिक्योरिटी मार्केट्स को लेकर के कोई कंप्लेंट है, कुछ भी है आपके आसपास, किसी की, बिना हिचक आप फोन करिए, मेल करिए। सेबी का तो ऑनलाइन सिस्टम है ही, हमारे माध्यम से भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। हमारे सोशल प्रोजेक्ट जो हैं वो हम लोग करते हैं सिडबी और नाबार्ड के साथ में। एक स्वावलंबन प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग ग्रांट दिलवा रहे हैं 50,000 रुपए तक की, लेकिन वो कोई अगर एंटरप्राइज अपना कर रहा है उसमें हम लोग देते हैं। फाइनेंस के मामले में हम लोग आपको हर तरह की मदद करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, देन यू कैन डू इट। कोई रिसर्च करना है किसी तरह का, उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू, एंड हम लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक, आपको फीडबैक फॉर्म इसके बाद अभी लिंक में डाल दिया जाएगा, तो वो फीडबैक फॉर्म आपको ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका बनाया हुआ है उसमें भी डाल दिया जाएगा। आप जरूर फीडबैक दें, अपने सुझाव दें कि क्या चीज़ हमने मिस करी है, सो दैट वो हम लोग आगे सुधार कर सकें उसमें। ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं आपको, contact@एवोक इंडिया फाउंडेशन ईमेल आईडी है, इसमें आप ईमेल कर सकते हैं। ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पे हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। और हमारी जो एवोक इंडिया फाउंडेशन की मेंबरशिप की जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बता सकते हैं हम लोग, उसके लिए आपको आप अप्रोच कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपका मैंने जो टाइम था उससे ज़्यादा टाइम ले लिया, बट अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, मैं स्क्रीन अपना स्टॉप कर देता हूँ शेयर करना, तो कोई भी सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और उसके अलावा हम लोग वैसे भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। Over to Dr. Anupama and Dr. Ravi Kumar. एक्सीड हो गया तो क्वेश्चंस तो आप लेते रहें, क्योंकि क्वेश्चन तो सर बहुत होंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी ये जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है उसमें अगर किसी क्वेश्चंस होंगे तो क्वेरीज अपनी इसमें डालेंगे। ये डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी का एक क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर्स लाइक सहारा ऑलवेज रीइन्वेस्ट द प्रिंसिपल मैच्योरिटी। ये अगर सुप्रिया जी आंसर करना चाहेंगे क्या आप? वहां से पैसा उन्होंने लिखा है कि टू मैनेज और कंप्लेंट सच केसेस, सहारा की बात कर रहे हैं। हाँ, सहारा से रिलेटेड बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं सेबी पे। मेनली बैकग्राउंड तो आप सभी को मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो पता ही होगा, बट उसके साथ मार्केट में क्रिएटेड है। सहारा से रिलेटेड 2 स्कीम्स सेबी हैंडल करता है, जो मतलब इनिशिएट की थी, जिसके अगेंस्ट में एक्शन सेबी ने। उसके अलावा जो मतलब आप, अब मुझे नहीं पता सर की कौन सी है, कौन सा इन्वेस्टमेंट है उनका, बट अदर देन सहारा हाउसिंग बॉन्ड्स एंड सहारा रियल एस्टेट, अगर कोई भी मैटर है जिसमें वो पेमेंट करने से मना कर रहे हैं, तो देन यू विल हैव टू अप्रोच द रेलेवेंट अथॉरिटी अकॉर्डिंगली। सबका अलग अलग है, बट अगर हाउसिंग या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप सेबी ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं बाय पोस्ट, या मतलब जैसे भी आप हैंड डिलीवरी करें उस लेटर की, या जो भी।
पेमेंट्स वगैरह ड्यू डिलिजेंस के बाद सहारा सेल एक बनाया हुआ है सेबी ने, तो उसमें सारी एप्लीकेशंस वेट होती हैं, पूरा ड्यू डिलिजेंस होता है, उसके बाद ही पेमेंट्स की जाती हैं, जो कि आई थिंक इट इज इन द प्रोसेस, मतलब वो चल रहा है, बहुत से लोगों का हो भी गया है पेमेंट। तो अगर एग्जैक्टली सर बता पाए थे कि कौन सी स्कीम है, तो मे बी फिर आगे हम उनको गाइड कर सकते हैं। प्रवीण जी, आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा सॉरी, किसी ने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मांगा है, व्हाट्सएप नंबर। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी जो नहीं जानते हैं इस मामले। मैं, अगर मेरी आवाज आ रही तो मैंने, किसी ने व्हाट्सएप नंबर भी मांगा है, तो दैट इज अवेलेबल ऑन द ग्रुप, तो आप उससे ले सकते हैं। बाकी नंबर भी आपको यहाँ दिए हुए हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कोई और क्वेश्चंस मुझे चैट बॉक्स में तो आई कैन नॉट सी। चैट बॉक्स का वैसे तो हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, किसी को अगर हाउ कैन वी इन्वेस्ट आवर मनी विद हाई रिटर्न एंड फुल सिक्योरिटी। कृष्ण कुमार जी ने एक सवाल पूछा है ये, तो ये सवाल मेरे ख्याल सबके ही सवाल में होता है, इससे अच्छा तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है कि हाई रिटर्न और फुल सिक्योरिटी। ऐसा कोई अगर जगह हो तो हमको बताइएगा, हम भी वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। कि जहाँ पे लाइफ में कभी अमृत तो मिल जाए, जहाँ अमर मिलता है ना, वो जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें अमृत तो प्राप्त हो गया था। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम लोग फिर देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कोई भी चीज जो ऐसी है जिसमें कि फुल सिक्योरिटी तो जिंदगी की है ही नहीं। आज जब हम लोग आज इवन बैंक में भी, आप लोगों को पता होगा शायद कि बैंक में भी पैसा, अगर बैंक टेक्निकली डूबता है तो आपको उसमें भी पैसा आपका डूब सकता है। बहुत से लोग अब ऐसे डूबे हैं, कोऑपरेटिव बैंक में डूबे हैं, आप सब जानते ही हैं। वहां पर भी जो इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट ने 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अब जो DICGC के अंतर्गत होता है, आपके डिपॉजिट का, अगर आपके 50 लाख जमा है और वो कल को बैंक डूब जाए तो सिर्फ 5 ही लाख मिलेगा आपको, 45 लाख नहीं मिलेगा। बशर्ते ऑफकोर्स गवर्नमेंट कोशिश करती है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, कि उसको किसी में मर्ज कर दे, लेकिन उतने समय के लिए आपको पैसा आपका फंस जाता है। तो कोई भी फुल सिक्योरिटी की बात तो कभी कहीं होती ही नहीं। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बार बार कहा कि रिस्क हाई होता है तो रिटर्न भी हाई होता है। लेकिन वो जब हाई रिस्क आप लेने जाते हैं, डिमैट अकाउंट खोलते हैं, खुद आप इन्वेस्ट करते हैं बजाय म्यूचुअल फंड के, तो फिर आपको जरूरी है कि आप उसके बारे में समझ पैदा करें, उसके बारे में थोड़ी स्टडी करें, लोगों से जानें और उसके बाद करें। तो देखिए, आपको मतलब आपका 100 रुपए का भी, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं एक कंपनी का, जो हम लोग कई बार अपने प्रोग्राम में देते हैं, कि 1980 में अगर उस कंपनी में आपने 1000 रुपए लगाए होते उसके शेयर में, आज आप गेस करिए उसके 1000 रुपए की वैल्यू क्या होगी। 40 साल हो गए हैं, 40 साल में उस 1000 रुपए की वैल्यू आज है 56 करोड़ रुपीज, 56 करोड़ रुपए। 1000 रुपए आपके बाबा जी ने, आई एज्यूम कि हम सब लोग हमारी एज के हैं, तो बाबा जी ने अगर लगा दिए होते 1000 रुपए उस कंपनी के शेयर में, जिस कंपनी का नाम है विप्रो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो शेयर मार्केट या आज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हाईएस्ट रिस्क लेते हैं, उनके कैपिटल हाईएस्ट रिस्क में होती है। लेकिन अगर आपने जिसको पैसा दिया है वो आदमी बहुत सिंसियर है, डेडिकेटेड है अपने काम में, और अगर वो पैसा ठीक से, तो वो पैसा आपका बढ़ना ही है। अब आप उसमें कहें कि सिक्योरिटी थी, तो सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। 93 में IPO आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इन्फोसिस का। किसी ने 10,000 रुपए लगाए होते तो 95 में रह गए 7,000 रुपए। तो सब लोग घबरा गए होंगे, अरे क्या हो गया, कंप्यूटर की कंपनी है, डूब जाएगी, ये उसको निकाल लो पैसे। लेकिन बहुत लोग बड़े दमदार रहे, नहीं निकाला पैसा। उन्होंने कहा ठीक है चलो हमने दे दिया, 10,000 दे दिया। 10,000 बहुत होते थे उस समय 93 में। हमारी सैलरी 89 में 1,800 रुपए थी, तो 10,000 बहुत बड़ी चीज होती थी, हमने वही लगाया। अब आप सोचिए वो 10,000 रुपए 93 के आज उसकी वैल्यू कितनी होगी। आज उसकी वैल्यू करीब 6 करोड़ रुपए है। 93 से 2020 में 27 सालों में 10,000 के 6 करोड़। तो जो लोग ये पूछते हैं कि हाई रिटर्न मिल जाए, मुझे हाईएस्ट रिटर्न मिल जाए, तो वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन आपके, हम सबके ज्ञान से, जो आप लोग तो टीचिंग में हैं, सब लोग हैं, तो ज्ञान का तो प्रसार होता ही है।
उसका एप्लीकेशन करेंगे तो बिल्कुल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आई विल हैंड इट ओवर टू अनुपमा जी फॉर फ्यूचर टेकिंग इट फॉरवर्ड। थैंक यू। आप म्यूट पे हैं। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, अरे जनवरी में भी हमने एक एआईपी की थी यहाँ पे, बेसिक नॉलेज की थी। ये सेकेंड आईआईपी है और इसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको, हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, ज्यादा इंटरेक्टिव रहा। तो स्टार्टिंग वुड लाइक टू थैंक DCMCP टू valuable time, Ajin Sevi and Praveen Kumar Dwivedi, President Avok India Foundation, especially for about financial freedom model. Power and magic compounding and averaging was very beautifully explained by Supriya ma'am. Not only gave us wonderful knowledge, but also you are inspiring us to invest in market. और अच्छी नॉलेज हम लोग को दी है। Secondly, I would like to thank Rajat and Shrishti for managing the webinar very well. Then I would like to thank our principal sir, Mr. Rabindra Kumar, for motivating us, our college teachers and staff members for the valuable support, especially Dr. Srisha ma'am, Rajiv Dwivedi sir, Anupama madam, Ranjit sir, Shekhar sir, Soni sir, 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 with their valuable time. But not least, I feel privileged to thank such an amazing audience for interacting and making this webinar a great success. Thank you once again to all of you. Thank you, sir. Thank you to all of you. थैंक यू जी, नमस्कार। Thank you.